Assalamu alaikum. I'm Dr. Sadia Afandi. So this is the part three of the nerves of the upper limb. So what we will discuss today, the ulnar nerve. Ulnar nerve arises from the medial cord in the axilla. It descends between the axillary artery and the vein. So this is the ulnar nerve. This is the ulnar nerve, and this is the median nerve. So we will discuss the ulnar and median nerve both. So this is the branch of the main branch of the medial cord of the brachial plexus, and it descends between this is the axillary artery and this is the brachial artery. So it is between the axillary artery and the axillary vein in the axilla, and then in the anterior compartment of the arm on the medial side. Then it runs on the medial side of the brachial artery. Then it pierces here it pierces the medial intermuscular septum, and then it passes posterior to the then it passes posterior to the medial epicondyle. So this is the medial epicondyle of the humerus. Actually the ulnar nerve passes behind the medial epicondyle. So whenever the fracture of the medial epicondyle leads to the damage of the ulnar nerve, it pierces the medial intermuscular septum to enter in the posterior compartment. At elbow, it lies behind the medial epicondyle. So this is the elbow and it is behind the medial epicondyle. It enters the forearm between the two heads of the flexor carpi ulnaris. So it comes forward and it passes between the two heads of the flexor carpi ulnaris, which causes the adduction and medial rotation. So here it passes between, which causes the adduction and flexion of the forearm. So this it passes between the two heads of the flexor carpi ulnaris and at the wrist between the tendons of the flexor carpi ulnaris. Then it comes downward and it runs between the flexor carpi ulnaris and flexor digitorum profundus. Beta, there is lot of muscles in the forearm, and two important muscles which are present medially. So this is the medial side of the arm. तो यहाँ पर सबसे पहले फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस होता है. सो इट रन्स बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस. फिर थोड़ा सा नीचे आएगी तो दो और मसल्स के बीच में आ जाती है. ये देखिए, दिस इज द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड दिस इज द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. पहले फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के दो हेड्स के बीच में होती है, फिर नीचे जैसे जैसे नीचे आती है तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस और प्रोफंडस के बीच में आ जाती है. ठीक है. अच्छा, at the wrist, the tendons of the flexor carpi ulnaris and digitorum profundus. ये flexor digitorum profundus और flexor carpi ulnaris enters the palm superficial to the flexor retinaculum. अच्छा, यहाँ पर जब wrist के करीब आती है तो ये आप जो है it runs over the flexor retinaculum, फिर ये ऊपर जाती है in the hand. ठीक है. एक इसकी dorsal branch जो है वो पीछे चली जाती है. So the branch which enters into the hand, it supplies the उसकी एक superficial branch होती है. फिर ये जो है बेटा ये deep branch है. जो branch palm of the hand के अंदर enter होती है वो भी दो branches में divide होती है. एक इसकी superficial branch है जो cutaneous branch होती है, जो आपकी जो medial side है, medial 1.5 finger को supply करती है, cutaneous supply देती है. जो इसकी deep branch है ये आपके डिफरेंट हैंड के मसल्स को सप्लाई करती है, यानी जो मीडियल टू लॉम्ब्रिकल्स हैं उनको सप्लाई करती है. मैंने आपको बताया था कि लॉम्ब्रिकल्स जो हैं वो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन करवाते हैं और इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन करवाते हैं. अगर लॉम्ब्रिकल्स डैमेज हो जाएं तो जो है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है ड्यू टू जो opposite action of the extensor digitorum superficialis, और जो fingers होती है उस पे बहुत ज्यादा flexion हो जाती है because of the opposing action of the और dominant action of the flexor digitorum superficialis and profundus. तो वैसे क्या होता है कि नॉर्मली आपके एमसीपी पे फ्लेक्शन होती है और इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन होती है. तो यहाँ पर कुछ हैंड के मसल होते हैं लॉम्ब्रिकल्स, जो मीडियल लॉम्ब्रिकल्स हैं उनको अल्नर नर्व सप्लाई करती है और लेटरल टू लॉम्ब्रिकल्स जो हैं उनको मीडियल नर्व सप्लाई करती है. ये हैंड के सारे एंट्रोशाय को सप्लाई करती है, यानी पामर एंट्रोशाय एंड द डॉर्सल एंट्रोशाय. पामर एंट्रोशाय एडक्शन करवाते हैं और एडक्शन ऑफ द फिंगर्स करवाते हैं, और डॉर्सल एंट्रोशाय जो हैं वो एबडक्शन ऑफ द फिंगर्स कराते हैं. एक इसकी डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच पीछे जाती है और वो जो है
आपके जो है डॉर्सम ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है और आपके जो है 1.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है। सो ये रही आपकी मीडियन नर्व, सॉरी अल्नर नर्व। अच्छा, ब्रांचेस प्रॉक्सिमल फोरआर्म पर ये किस-किस को ब्रांचेस देती है? नर्व टू फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस को देती है और आपके जो है मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एक ऐसा मसल है, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये ऐसा मसल है जिसको मीडियल पोर्शन जो है इसका सप्लाई होता है बाय द अल्नर नर्व और लेटरल पोर्शन जो है इसका सप्लाई होता है बाय द मीडियन नर्व। ठीक है बेटा? तो ये इस flexor digitorum profundus has a dual nerve supply. Medial portion supplied by the ulnar nerve and the lateral portion is supplied by the median nerve. फिर अच्छा डिस्टल फोरआर्म में कौन सी ब्रांचेस होती हैं? पामर क्यूटेनियस ब्रांच, मैंने आपको बताया पामर क्यूटेनियस ब्रांच रन्स ओवर द फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, फिर ये सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। तो पामर क्यूटेनियस ब्रांच जो है स्किन ऑफ द हाइपोथीनार एमिनेंस को सप्लाई करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था जो लिटिल फिंगर की साइड जो पाम है वो है थीनार एमिन और हाइपोथीनार एमिनेंस, और जो थंब की साइड जो पाम का एस्पेक्ट है दैट इज कॉल्ड द थीनार एमिनेंस। ये थीनार एमिनेंस है जो थंब के साइड है, जो लिटिल फिंगर के साइड पाम का साइड है दैट इज कॉल्ड द हाइपोथीनार एमिनेंस। तो पामर क्यूटेनियस ब्रांच आपके जो है मीडियल साइड ऑफ द पाम को सप्लाई करेगी जिसको आप हाइपोथीनार एमिनेंस कह रहे हैं, और ये क्यूटेनियस ब्रांच है इसलिए आपके स्किन ऑफ द मीडियल 1/3 ऑफ द जो है आपका पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच, जो मैंने आपको बताया पोस्टीरियरली जो इसकी क्यूटेनियस ब्रांच है वो जाहिर है एक जो पामर ब्रांच होगी वो पाम को सप्लाई करेगी, और पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच जो यहीं से रिच से पीछे चली जाती है वो जाके डॉर्सम यानी पीछ हाथ के पीछे वाले हिस्से को सप्लाई करेगी और 1.5 फिंगर्स को सप्लाई करेगी। तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच स्किन ऑफ द मीडियल 1/3 ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड एंड डॉर्सल साइड ऑफ द मीडियल 1.5 फिंगर को पीछे की साइड भी सप्लाई करेगी। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है? अच्छा, ब्रांच इज इन द पाम जो है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर। अच्छा, पाम में जो एक मैंने आपको बताया इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है और इसकी एक डीप ब्रांच है। सुपरफिशियल ब्रांच जो है स्किन ऑफ द पामर सरफेस ऑफ द मीडियल 1.5 फिंगर। तो सुपरफिशियल ब्रांच जो है स्किन ऑफ द पाम को भी सप्लाई करेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया स्किन ऑफ द पाम को भी और मीडियल 1.5 फिंगर को सप्लाई करेगी सुपरफिशियल ब्रांच। और डीप ब्रांच जो है बेटा ऑल मसल्स ऑफ द हैंड एक्सेप्ट द थीनार मसल। थीनार मतलब जो थंब के साइड है ये मीडियन नर्व सप्लाई करती है। यहाँ के जो बाकी मसल्स हैं सारे मसल्स हैंड के तकरीबन अल्नर नर्व सप्लाई करती है। जो मीडियन नर्व सप्लाई करती है वो सिर्फ 5 मसल होते हैं, यानी आपके जो है दो लोम्ब्रिकल्स, टू लैटरल लोम्ब्रिकल्स आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। उसके अलावा जो है 3 और होते हैं ओपोनेंस पॉलिसिस। अच्छा, दूसरा जो एक मसल है वो है जो है आपका फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। तो ये तीन 5 मसल हैं दैट आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। बाय रेस्ट ऑफ द मसल्स जो हैं चाहे सारे इंट्रोशायर पामर एंड डॉर्सल इंट्रोशायर, पामर इंट्रोशायर एडक्शन कराते हैं और डॉर्सल इंट्रोशायर एबडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मसल्स हैं दे आर सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व, और आपके जो 2 मीडियल लॉम्ब्रिकल्स हैं वो भी अल्नर नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, और आपके पामर और डॉर्सल जो इंट्रोशायर है वो भी सप्लाई करती है। ठीक है, और जो है बाकी जो हाइपोथीनार मसल्स हैं वो भी सप्लाई करती है। तो सारी मसल्स जो हैं एक्सेप्ट द 2 लॉम्ब्रिकल्स, ठीक है, फर्स्ट 2 लॉम्ब्रिकल्स या लैटरल लॉम्ब्रिकल्स, और जो थीनार मसल्स हैं 3 वो उनके अलावा बाकी सारे मसल्स को जो है वो अल्नर नर्व सप्लाई करती है। अब आपको समझ आया कि अल्नर नर्व जो नीचे आ रही है वो पहले जो है मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी होती है, फिर यहाँ पर ये इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करती है, फिर पीछे चली जाती है पोस्टीरियर टू द मीडियल एपिकोंडाइल, फिर ये बीच में बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस आगे आती है, उसके बीच में होती है, फिर बिटवीन द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के बीच में होती है, फिर नीचे आती है, फिर इसकी एक सुपरफिश पामर क्यूटेनियस ब्रांच बन जाती है, और एक इसकी डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच। जो पामर ब्रांच नीचे आती है ओवर द फ्लेक्सर रेटिनिकुलम वो फिर सुपरफिशियल और डीप में डिवाइड हो जाती है। डीप वाली सारे मसल्स को सप्लाई करती है और सुपरफिशियल वाली जो है वो आपके
जो स्किन को क्यूटेनियस सप्लाई देती है एट द हाइपोथिनार एमिनेंस, और आपके 1.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है। डॉर्सल यानी जो पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है वो आपकी जो है आपके डॉर्सम ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है और आपकी मीडियल 1.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द, अभी ये देखें, ये आपकी ये डॉर्सम ऑफ द हैंड है, ये देखें, ये जो डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच थी वो पीछे आई और उसने देखें डॉर्सम ऑफ द हैंड को सप्लाई किया और 1.5 फिंगर्स को सप्लाई किया। जो पामर ब्रांच थी, पामर क्यूटेनियस ब्रांच थी, वो आगे आई और इसने पाम ऑफ द हैंड को सप्लाई किया और आपके 1.5 फिंगर्स को सप्लाई किया, एक छोटी उंगली को और एक जो आपकी रिंग फिंगर है उसकी आधी उंगली को, ठीक है। तो दिस इज ऑल सप्लाइड बाय द, यहाँ फिर देखिए ये मीडियन नर्व नीचे आ रही है, इट इज बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल, फिर बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, फिर बिटवीन द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, देखिए ये नीचे आ रही है, फिर यहाँ पर आके यहाँ पर इट इज जो है ओवर द फ्लेक्सर रेटिनिकुलम नीचे आएगी, फिर सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, इसकी एक ब्रांच पीछे भी जाएगी, ठीक है, वो डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच होगी, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर आपको अल्नर नर्व नजर आ रही है, पहले ये एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन के बीच में होती है, फिर ये मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी होती है, फिर यहाँ पर मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके पीछे चली जाती है और फिर दोबारा आगे आ जाती है, ठीक है। तो अगर मीडियल एपिकोंडाइल अगर फ्रैक्चर हो तो ये नर्व डैमेज हो सकती है, ठीक है। ये देखिए पामर इंट्रोशियस मसल को सप्लाई करती है, डॉर्सल इंट्रोशियस मसल को सप्लाई करती है, यहाँ पर एडक्टर पॉलिसिस एक मसल होता है उसको सप्लाई करती है, और आपके मीडियल टू लॉम्ब्रिकल्स को सप्लाई करती है, हाथ में जितने भी स्मॉल मसल हैं उन सबको मीडियल नर्व सप्लाई करती है, सवाए थीनार मसल्स के और लेटरल टू लॉम्ब्रिकल्स के जो यहाँ पर होते हैं, ये सारे मीडियन नर्व सप्लाई करती है 5 मसल, बाकी जितने भी मसल्स हैं, बहुत मसल्स हैं इनमें, दे आर ऑल सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व, ठीक है। अच्छा, अल्नर नर्व इंजरी में क्या है, मोस्ट कॉमनली इंजर्ड एट दिस साइट, जी बेटा, तो मोस्ट कॉमनली इंजर्ड एट दिस साइट मीडियल एपिकोंडाइल पर फ्रैक्चर अब जब होगा मीडियल एपिकोंडाइल का तबीयत डैमेज होगी। अच्छा, मोटर लॉस क्या है, जाहिर है ये सप्लाई करती है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस को, तो वो डैमेज होगा मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को, तो वो अपलो प्रोफंडस क्या कराता है, आपकी फ्लेक्शन कराता है, डिस्टल फैलेंजेस को जो है फ्लेक्स करवाता है। तो ये सिर्फ मीडियल हाफ, दो मैंने आपको बताया था फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है वो जो है उस दो नर्व से सप्लाई होता है, तो अगर अल्नर नर्व की डैमेज होती है तो ये मीडियल हाफ साइड वाला जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है वो काम नहीं करेगा, बाकी जो है आपका जो है वो मीडियन नर्व वाला जो है वो बेटा काम करता रहेगा। समझ आ रही है ना आपको मेरी? अच्छा, अब आप डिफॉर्मिटी देखें, स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड आर पैरालाइज्ड एक्सेप्ट द थिनार मसल, मैंने आपको बताया था 3 मसल्स होते हैं जिनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है, और 2 लॉम्ब्रिकल्स जो लेटरल वाले होते हैं यहाँ पर, थिनार में जो 3 मसल्स होते हैं, एक एब्डक्टर पॉलिसिस, फ्लेक्सर पॉलिस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपनंस पॉलिसिस, यही 3 मसल हैं और 2 लॉम्ब्रिकल्स हैं दैट आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व, बाकी जो जितने भी मसल्स हैं इनके अंदर दे आर सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। अच्छा, डिफॉर्मिटी क्या होगी, वेस्टिंग ऑफ द अल्नर बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म, देखिए अल्नर बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म जहाँ पर फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, जाहिर है उनकी नर्व सप्लाई चली जाएगी, तो वहां पर वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। फ्लैटनिंग ऑफ द हाइपोथिनार एमिनेंस, क्योंकि हाइपोथिनार एमिनेंस के मसल्स को सप्लाई करती है अल्नर नर्व, तो वहां फ्लैटनिंग होना शुरू हो जाएगी। और टर्मिनल फैलेंजेस जो हैं, टर्मिनल phalanges ऑफ द लिटिल एंड टर्मिनल phalange कौन सा है, ये प्रॉक्सिमल है, ये मिडिल है, ये है टर्मिनल, और डिस्टल phalanges कैन नॉट बी फ्लेक्स्ड, देखिए यहाँ पर अगर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस चला गया है तो यहाँ पर फ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो पहले ये जो डिस्टल फैलेंग्स हैं ये आपके फ्लेक्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। किसके जाने की वजह से, अल्नर नर्व के जाने की वजह से लिटिल और रिंग फिंगर कैन नॉट बी फ्लेक्स्ड
ठीक है, और जो आपके थर्ड और फोर्थ लुम्ब्रिकल्स एंट्रोशायस सभी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। इनएबिलिटी टू एबडक्ट एंड एडक्ट फिंगर्स, क्यों? एडक्ट एबडक्ट करवाता है जो है डॉर्सल एंट्रोशाय, और पामर एंट्रोशाय जो है वो एडक्ट करवाता है। तो ना एबडक्ट होंगी फिंगर्स, एबडक्ट मतलब ना दूर होंगी ना करीब होंगी, फिंगर्स जो हैं एक जगह पर स्टिल हो जाएंगी। लॉस ऑफ एडक्शन ऑफ थंब फ्लैक्स, तो जो फ्लेक्सर आपका जो एडक्टर पॉलिसिस है ना, जो आपके थंब को एडक्ट कराता है, वो भी लॉस हो जाएगा। और थंब जो है वो लैटरली पड़ा रहेगा, लेकिन एडक्शन नहीं करेगा, मतलब आपकी उंगलियों के साथ फिक्स नहीं होगा। ये देखें, ये यहाँ तो यहाँ पड़ा हुआ है दूर, यहाँ नहीं, करीब नहीं आ सकता, एडक्शन नहीं हो सकती थंब की। तो लॉस ऑफ एडक्शन हो जाएगी, क्योंकि एडक्टर पॉलिसिस इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। आपके मीडियल टू लॉम्ब्रिकल चले जाएंगे, लॉम्ब्रिकल्स के जाने की वजह से एमसीपी जॉइंट पर हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी, और आपके जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के जाने की वजह से आपके जो जो डिस्टल फेलिंग्स है वहां पर फ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है बेटा। इनएबिलिटी टू एबडक्ट एडक्ट फिंगर्स एंड फ्लैक्स, ये इंट्रोशाय चले गए, एबडक्ट और एडक्ट नहीं होंगी, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फॉर्मेंट साइन क्या है? फ्लेक्शन ऑफ द टर्मिनल phalanx of the thumb while attempting adduct the thumb in ulnar palsy। अच्छा, ये एक साइन होता है, ये कुछ साइन है, ये आपके लिए नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। क्लॉ हैंड क्या है? क्लॉ हैंड में आपका मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर आर हाइपर एक्सटेंडेड। अच्छा, इसमें क्या है आपकी, ये फोर्थ, ठीक है, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फोर फिंगर और फिफ्थ फिंगर जो है ये हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि एमसीपी जॉइंट जो है यहाँ पर ये फ्लेक्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लॉम्ब्रिकल चले गए हैं, ये हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएंगे। और इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो है फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर का, यहाँ पर देखिए इंटरफेलेंजियल जो है, ये प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, ये डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है। ठीक है, आपकी जो थंब होता है उसमें एक इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है, लेकिन फिंगर्स में आपके दो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं। आप अगर आप यहाँ देखेंगे, इंटरफेरेंजियल जॉइंट पर यहाँ फ्लेक्शन होगी। ठीक है, दे आर फ्लेक्स्ड, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो है वो इंटैक्ट है, जिसको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर फ्लेक्शन होगी, और ये एफडीएस यानी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की वजह से, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रोफंडस जो है यहाँ का, जो अल्नर नर्व साइड सप्लाई करती थी, वो वीक हो गया है। ठीक है। अच्छा, फ्लैटनिंग ऑफ द हाइपोथिनार एमिनेंस, हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फ्लैटनिंग हो जाएगी। और hollowing between the metacarpals on the dorsum of the hand due to paralysis of the dorsal interstia। अच्छा, और जब आप डॉर्सम में देखेंगे तो एक खड्डे खड्डे आप पड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ की जो नर्व सप्लाई है, डॉर्सल एंट्रोशिया जो अल्नर नर्व से सप्लाई हो रहे थे, वो अल्नर नर्व चली गई है वहां पर, इसलिए आपके गैप्स आपको नजर आएंगे पेशेंट के अंदर। और सेंसरी लॉस में आपको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ द हैंड, यहाँ पर आपको देखिए, मैंने आपको बताया था ये मीडियल साइड ऑफ द पाम और 1.5 फिंगर दे आर सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। इसी तरह पोस्टीरियर जो डॉर्सम ऑफ द हैंड है, और जो है आपके मीडियल 1.5 फिंगर्स ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड, दे आर सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। तो ये जब नहीं होंगी, सेंसरी लॉसेस हो जाते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ द हैंड एंड मीडियल 1.5 फिंगर्स जो हैं वो आंख की सेंसेशन लॉस हो जाएगी। ठीक है, अब आपको आहिस्ते आहिस्ते समझ आ रहा होगा कि कौन कौन से मसल्स लॉस हुए हैं और उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो जाएंगी। कि देखिए, अब ये अंदाजा आपको होगा कि नर्व्स कितनी इम्पोर्टेंट है, और जो है उनकी जाने की वजह से जो है कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन से मसल गए? फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस जो आपकी फ्लेक्शन और एडक्शन ऑफ द रिस्ट कराता है, आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस चला गया, जिसकी वजह से ये आपके डिस्टल पैलेंस जो है वो जो है फ्लेक्स नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर। और आपका लुम्ब्रिकल्स चले गए, जिसकी वजह से आपके एमसीपीज जो हैं वो हाइपर एक्सटेंडेड हैं। ठीक है, यहाँ इंटरफेरेंजियल जॉइंट पर फ्लेक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है वो सप्लाई करता है, और
उसकी नर्व सप्लाई मीडियन नर्व है। ठीक है, सारे आपके इंट्रोशिया है, पामर इंट्रोशिया, डॉर्सल इंट्रोशिया चले चले गए हैं, मीडियल 2 लॉम्ब्रिकल चले गए हैं, और जो आपका जो है एडक्टर पॉलिसिस दैट इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। अब देखिए, आप थंब जो है वो एडक्शन में नहीं आ सकता। तो ये सारी चीजें हैं जो अल्नर नर्व, देखिए नर्व्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर नर्व को कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो आपके पूरे हैंड का फंक्शन, और ये देखिए ना, आप पहले आप पूछ रहे थे व्हाट इज डिफॉर्मिटी, अब आप तो देख पता चल रहा है कि कैसे हो जाती है डिफॉर्मिटी। अच्छा, अब अल्नर नर्व इंजरी एट रिस्ट अगर आप देखेंगे तो ये बताएगा ड्यू टू सुपरफिशियल पोजीशन पेनिट्रेटिंग वुंड्स, कोई भी पेनिट्रेटिंग वुंड्स जो है इसको डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका जो फ्लेक्सर रेटिनिकुलम है उसके ऊपर से गुजर रही होती है। ठीक है, तो कोई भी पेनिट्रेटिंग वुंड्स, कोई चोट लग गई, किसी ने मारा, कुछ हो गया, तो दैट इज एक्चुअली डैमेजेस द अल्नर नर्व। स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड, आपको पता है जो ये अल्नर नर्व ऊपर से गुजरती है, फिर ये सुपरफिशियल ब्रांच में और डीप ब्रांच में, तो और ऊपर कोई मसला नहीं होगा, लेकिन नीचे जो स्मॉल मसल्स हैं वो उनकी सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो जाएगी अगर डैमेज यहाँ पर हुई है। आसान सी बात है, अगर यहाँ पर डैमेज हुई है तो आगे वाले मसल्स ही इन्वॉल्व होंगे। तो स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड एक्सेप्ट दोज ऑफ द थिनर एमिनेंस, 3 मसल वो और 2 लैटरल लॉम्ब्रिकल्स के अलावा बाकी सारे मसल्स जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे। और क्या होगा, क्लॉ हैंड होगा, मोर प्रोमिनेंट बिकॉज द एफटीपी इज नॉट पैरालाइज्ड। अच्छा, अब जब डैमेज यहाँ पर हुई है तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस पैरालाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए और ज्यादा क्लॉ हैंड बनेगा। कैसे बनेगा कि पहले तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है, वो जो फिंगर्स थी डिस्टल फैलिंग्स, वो ये वाले जो डिस्टल फैलिंग्स थे ये जो है वो फ्लेक्स नहीं हो पा रहे थे। अब क्या होगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस भी अगर डैमेज यहाँ पर हुई है तो ये इंटैक्ट है, तो अब क्या होगा, और फ्लेक्शन हो जाएगी, यानी फ्लेक्स जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों पे फ्लेक्शन हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो फ्लेक्सर्स हैं बड़े वाले, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस, बहुत दोनों ही इंटैक्ट है, इसलिए दोनों पे फ्लेक्शन हो जाएगी। इज नॉट पैरालाइज, दोनों उंगलियों पे फ्लेक्शन होगी, सो मार्क फ्लेक्शन ऑफ द डीआईपी इन, अच्छा डीआईपी जो है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, अब आराम से दोनों पे फ्लेक्शन होगी। ठीक है, एंड इनएबिलिटी टू एबडक्ट, जाहिर है एबडक्ट और एडक्ट नहीं हो सकेंगे क्योंकि इंट्रोशाय चले गए हैं। और फ्लैटनिंग ऑफ द हाइपोथेनर होगी, यहाँ पर जो छोटे मसल्स होंगे एबडक्टर डिजिटी मिनिमी और दूसरे मसल एबडक्टर ओपनेंस डिजिटी मिनिमी, ये सारे जो हैं ये जो है वो वीक हो जाएंगे, हाइपोट्रोफिड हो जाएंगे, सो यहाँ पर आपकी फ्लैटनिंग हो जाएगी। सेंसरी लॉस, ऑब्वियसली सेंसरी लॉस होगा ऑन द जो आपका मीडियल साइड ऑफ द पाम एंड पामर एंड द डोर्सल सर्फेसेस जो हैं आपके मीडियल साइड ऑफ द पाम एंड जो है आपके डोर्सल सरफेस ऑफ द हैंड वहां पर भी, और आपके जो मीडियल जो 1.5 फिंगर है वो पामर साइड की भी और डॉर्सम ऑफ द हैंड की भी, दोनों की जो है आपकी सेंसरी लॉसेस होंगी। सेंसेशन ऑन द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस ऑफ द हैंड इज इंटैक्ट। अच्छा, इसमें जब आप रिस्ट में डैमेज होगी तो सिर्फ पामर वाली पे होगी, on the medial side, palm and palmar and dorsal surface of one, अच्छा dorsal surface of the 1.5 fingers तो जाएगी, लेकिन जो medial surface of the hand है posterior surface पे, ये इंटैक्ट रहेगा, ये बेटा सही होगा ऊपर वाला। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर सेंसेशन लॉस हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर पामर सरफेस पर होगी और यहाँ पर जो है वो डैमेज होगी, यहाँ पर लॉस हो जाएगी पामर पर और फिंगर्स ऑफ द डॉर्सम की, बाकी ये वाला जो है वो इंटैक्ट रहेगा। वैसे अगर डैमेज यहाँ पर हुई है तो पीछे वाले को सारे को ही इंटैक्ट रहना चाहिए। ऑन द मीडियल साइड ऑफ द पाम एंड पामर एंड डॉर्सल सरफेस ऑफ द 1.5 फिंगर्स। वैसे तो जो जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है कि पीछे अगर डॉर्सल ब्रांच चली जाती है तो डैमेज अगर रिस्ट पर हुई है तो सिर्फ ये पामर साइड ऑफ द जो है आपकी हैंड और आपकी 1.5 फिंगर्स जानी चाहिए, पीछे वाला इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। सर ये मैं दोबारा चेक करूंगी, थैंक यू। अच्छा, अब आप देखिए अब क्या है कि अगर रिस्ट पर डैमेज हुई है
ठीक है। स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड्स आर पैरालाइज्ड, वेस्ट जारी वेस्टेड होंगे, हाइपोट्रोफीड होंगे, एक्सेप्ट थ्री थिनार मसल्स, और जो मैंने आपको बताया, और लेटरल टू लॉम्ब्रिकल्स के अलावा जो मीडियन नर्व सप्लाई करती है। अच्छा, अब क्लॉ हैंड रिस्ट पर हुआ है तो मोर ऑब्वियस क्या होगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस भी इंटैक्ट है, और मार्क फ्लेक्शन एट द इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। अब देखिए यहाँ भी कितनी फ्लेक्शन है, क्योंकि ये पहले ही इंटैक्ट था जो मीडियन नर्व सप्लाई करी थी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। और यहाँ पर फ्लेक्शन क्यों हो रही है जो पहले नहीं हो रही थी, क्योंकि अब डैमेज रिस्ट पर हुई है। ठीक है, ऊपर वाला फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं होगी, यहाँ पर भी फ्लेक्शन हो जाएगी। तो लगेगा कि क्लॉ हैंड बहुत ज्यादा है, लेकिन डैमेज सिर्फ नीचे नीचे होगी, ऊपर नहीं होगी, इसलिए ये दोनों जॉइंट्स फ्लेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है बेटा। तो इसको कहते हैं अल्नर पैराडॉक्स, हायर लीजन, जहां अगर अल्नर नर्व हायर हायर मैनी मीडियल एपिकोंडाइल पर या कहीं बीच में डैमेज होती है, तो लेस ऑब्वियस जो है क्लॉ डिफॉर्मिटी होगी, कम होगी, क्लॉ आप हैंड होगा लेकिन कम होगा। लेकिन अगर रिस्ट के लेवल पर मोर प्रॉक्सिमल इंजरी हुई है यहाँ पर, ठीक है, अगर अगर नीचे हुई है, नहीं सॉरी, अगर ऊपर हुई है, मोर प्रॉक्सिमल इंजरी है, ऊपर की तरफ इंजरी है, तो क्लॉ हैंड कम होगा। लेकिन अगर जो है नीचे की मोर डिस्टल इंजरी हुई है, नीचे की साइड पर इंजरी हुई है, तो बहुत ज्यादा क्लॉ हैंड आपको फील होगा, लेकिन डैमेज इतनी नहीं होगी। उल्टा है, मतलब अगर ऊपर इंजरी हुई है तो कम आपको क्लॉ हैंड नजर आएगा, अगर नीचे रिस्ट के लेवल पर और कहीं दूर अल्नर नर्व डैमेज हुई है तो आपको ज्यादा क्लॉ हैंड नजर आएगा। समझ आ गई आपकी? अच्छा, अब आगे जाते हैं। आप ये देखें क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे है। ये देखें आपका जो है, ये सारा 1.5 फिंगर्स, और ये जो डॉर्सम ऑफ द हैंड है, इट इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। इस तरह ये देखिए पामर सरफेस, ये हाइपोथिनार एरिया और पाम और 1.5 फिंगर, दिस इज ऑल सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। अच्छा, अब मीडियन नर्व क्या सप्लाई करती है, जो है लेटरल 3.5 फिंगर्स, इसमें एक थंब होता है, एक इंडेक्स फिंगर, एक आपकी मिडिल फिंगर, और जो है ये आपकी रिंग फिंगर, हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। और ये जो है हाफ पामर एरिया जो है, लेटरल साइड ऑफ द पामर एरिया जो है, उसमें ये थिनार एरिया और लेटरल जो है हाफ एरिया जो है, इट इज सप्लाइड बाय द ये आपकी मीडियन नर्व। और मीडियन नर्व जो है डॉर्सम में, ये देखिए यहाँ सिर्फ यहाँ तक आपके जो फिंगर्स हैं ये सप्लाई करती हैं। ठीक है, और ये देखें एक 1 2 3.5, लेकिन ये फिंगर्स जो है नक्कल से ऊपर ऊपर होते हैं, ये देखें आप। अच्छा, अब रेडियल नर्व जो है, ये देखें आपका थंब, बाकी जो यहाँ तक तो आपकी मीडियन नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, 1 2 3 को यहाँ ऊपर ऊपर देखें, ये सारे मीडियन नर्व सप्लाई करती है। रेडियल नर्व जो है सिर्फ आपका 1 2 3, जहाँ मीडियन नर्व सप्लाई किया उसके नीचे वाला एरिया, और डॉर्सम ऑफ द हैंड, दिस इज सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब वेजोमोटर चेंजेस क्या है बेटा, द स्किन एरियाज इन्वॉल्व इन द सेंसरी लॉस आर, जहाँ सेंसरी लॉस हो गया है वो एरिया जो है वो वार्म होंगी और ड्राई हो जाएंगी, जहाँ पर आपकी सिंपैथेटिक सप्लाई चला गया है। जब सिंपैथेटिक क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है आपके वेसल्स को, जहाँ सिंपैथेटिक सप्लाई चली गई वहाँ वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और वार्मर इफेक्ट देती हैं, और जो स्वेट ग्लैंड भी चले जाएंगे तो वो एरिया ड्राई हो जाएगी। देन नॉर्मल बिकॉज ऑफ द इंटीरियर डायलिटेशन एंड एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, मैंने आपको बताया वेसल्स की डायलिटेशन हो जाएगी, और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो वर्क नहीं करेंगी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ स्वेटिंग हो जाएंगी, रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस ऑफ सिंपैथेटिक कंट्रोल। ठीक है, सिंपैथेटिक की वजह से ये सारा मसला हुआ है कि जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, जहाँ की सिंपैथेटिक नर्व चली जाएंगी, और जो स्वेटिंग है वो भी लॉस हो जाएगी। अच्छा, ट्रॉफिक चेंजेस क्या है, इन द लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस चेंजेस आर फाउंड इन द हैंड एंड फिंगर्स। थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरेगा तो आपके हैंड में चेंजेस नजर आएंगी। द स्किन इज ड्राई स्केली, द नेल्स आर क्रैक इजीली, वो जो एरिया होगी जहाँ पर सिंपैथेटिक सप्लाई चली जाएगी वो एरिया आपको बहुत ड्राई और स्केली नजर आएगी, और नेल्स भी वहाँ के क्रैक होना शुरू हो जाएंगे। और एट्रोफी होना है, मतलब जो मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा, और पल्प ऑफ द फिंगर्स इज प्रेजेंट, जहाँ पर पल्प ऑफ द फिंगर्स होंगी वहां से मसल
जो है वो मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब मीडियन नर्व व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मीडियन नर्व जो है पहले आपकी एक्सिला में होती है, फॉर्म्ड इन द एक्सिला। मैंने आपको बताया था मीडियन नर्व बनती है बाय द जो है आपकी लेटरल रूट ऑफ द लेटरल कॉर्ड देती है, और जो है मीडियल रूट जो है वो मीडियल कॉर्ड देती है। तो दो जो आपकी जो कॉर्ड्स हैं वो जो है अपनी-अपनी ब्रांचेस देती हैं। लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व एंड द मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व दोनों लेटरल और मीडियल कॉर्ड्स देती हैं, और फिर आपकी जाके मीडियन नर्व बनती है। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में होती है, ये क्रॉस करती है ब्रेकियल आर्टरी की। पहले ये लेटरल होती है, फिर मीडियल आ जाती है आपके ब्रेकियल आर्टरी की। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी कहाँ कहाँ होती है? आर्म में होती है, मैं पढ़ाऊंगी आपको। एट एल्बो इट क्रॉसेस बाय द, यहाँ पर आपका एल्बो के लेवल पर ये जो मीडियन नर्व है यहाँ पर ये आ जाती है, और इट पासेस द इट क्रॉस्ड बाय द एन एल्बो, इट इज क्रॉस्ड बाय द बाइसेपिटल एपिनेरोसिस को क्रॉस करती है, पासेस बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीरीज। अच्छा, ये पास होती है बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीरीज। एक मसल होता है जो प्रोनेशन कराता है, यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में से पास होती है, फिर ये नीचे आती है, और बिटवीन द टू मसल्स होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस, उसके बीच में होती है। पहले प्रोनेटर टीरीज, यहाँ पर ये देख रहे हैं छोटा सा मसल प्रोनेटर टीरीज, उसके बाद ये नीचे आ जाती है। ऊपर जो कटा हुआ मसल नजर आ रहा है वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, नीचे प्रोफंडस है। ये देखिए ये मीडियन नर्व नीचे आ रही है, ठीक है। अच्छा, at rest at the lateral border of the flexor digitorum profundus, enter the palm beneath the flexor retinaculum। यहाँ पर flexor retinaculum होता है और ये नीचे से गुजरती है, ठीक है। इसकी एक पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऊपर से गुजरती है फ्लेक्सर रेटिकुलम की, और ये खुद नीचे से गुजरती है। अच्छा, जहाँ पर आपकी जो ये कार्पल बोन्स है ना, ये कार्पल टनल से गुजरती है, यहाँ वहां पर ये जो है वो कॉम्प्रेस भी हो सकती है, ठीक है। ब्रांचेस इन द प्रोक्सिमल फोर आर्म। अब प्रोक्सिमल फोर आर्म यहाँ पर आर्म में ये कोई ब्रांच नहीं देती, ठीक है। ये पहले लेटरल टू द ब्रेकियल आर्टरी होती है, फिर मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी होकर ये सीधी नीचे आ जाती है, ठीक है। और फिर प्रोनेटर टीरीज के दोनों हेड्स के बीच में से गुजरती है, और फिर नीचे आती है बिटवीन द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस। तो यहाँ पर ये ब्रांचेस देती है सुपरफिशियल लेयर को। सुपरफिशियल लेयर कौन सी है आपकी? एक फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है, पामेरिस लॉन्गस है, और आपसे फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पामेरिस लॉन्गस, और आपका जो प्रोनेटर टीरीज और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये ये इनको ब्रांचेस देती है। अच्छा, यहाँ पर इसकी कुछ जो है एक डीप ब्रांच होती है, एक पामर क्यूटेनियस ब्रांच होती है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। ब्रांचेस इन द प्रॉक्सिमल फोरआर्म, ऑल एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल्स को ये सप्लाई करती है, मैंने पहले भी बता दिया। फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस जो है एंड मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये तो सप्लाई होते हैं अल्नर नर्व से, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पर ये नहीं सप्लाई करती। प्रॉक्सिमल फोर आर्म में ये सप्लाई करती है आपके जो है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस को, और आपके जो है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस को, परमेरिस लॉन्गस को, और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को, और प्रोनेटर टीरीज को सप्लाई करती है। डिस्टल फोर आर्म में ये स्किन ऑन द लेटरल साइड ऑफ द पाम को सप्लाई करती है। अब ये देखिए लेटरल साइड ऑफ द पाम, ये देखिए लेटरल साइड ऑफ द पाम में आपके क्या है? आपके एक थंब है, ये लेटरल साइड ऑफ द पाम है, जिसको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। इसकी एक ब्रांच होती है पामर क्यूटेनियस ब्रांच, जो फ्लेक्सर रेटिकुलम के ऊपर से गुजरती है। ये देखें 1 2 3 एंड हाफ फिंगर्स को सप्लाई करती है। अच्छा, ब्रांचेस इन द पाम जो है वो आपके मसल्स ऑफ थीनार एमिनेंस, जो मैंने आपको बताया 3 अदर मसल को ये सप्लाई करती है इन द थीनार में। लेटरल टू लॉम्ब्रिकल्स को सप्लाई करती है, स्किन ऑफ द पामर सरफेस 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है, इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को, एंड हाफ ऑफ द रिंग फिंगर को। बेटा यहाँ पर ना ये कुछ मिस्टेक है, ठीक है। ये सही करने वाली है। ये प्रॉक्सिमल फोर आर्म में ये फ्लेक्सर डिजिटोरम, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस को, पाल्मेरिस लॉन्गस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को, प्रोनेटर टीरियस को सप्लाई करती है। इसकी एक एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच होती है जो अंदर जाके बाकी जितने भी डीप फ्लेक्सर्स हैं उनको सप्लाई करती है, यानी जो लेटरल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है वो भी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इसकी सप्लाई करती है। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को, प्रोनेटर क्वाड्रेटस को। तो ये 3 चीजें जो हैं वो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इसकी ब्रांच
यहाँ पर प्रॉक्सिमल फोर आर्म में देती है। ये जो है वो अंदर से जाके 3 मसल्स को सप्लाई करती हैं, और जो है जो ऊपर जो मीडियन नर्व इटसेल्फ है वो आपके सुपरफिशियल लेयर्स को सप्लाई करती हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, अब आप देखिए ये मीडियन नर्व है, ये बन के नीचे आई, ये आपके ये जो आपके क्यूबिटल फॉसा जो बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस तो उसका क्रॉस किया, बिटवीन द प्रोनेटर टीरीज के 2 हेड से गुजरी, फिर ये नीचे आई, यहाँ पर ये एक पामर क्यूटेनियस ब्रांच देगी और एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व देगी। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर ये बन रही है मीडियल रूट ऑफ द मीडियन, लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, और ये मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, ये आपकी मीडियन नर्व बना रहे हैं। मीडियल कॉर्ड और लेटरल कॉर्ड दोनों मिलकर आपकी मीडियन नर्व बना रहे हैं। तो ये नीचे आएगी, और यहाँ पर आपके फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस यहाँ पर होता है, जिस तरह फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस होता है, वो फ्लेक्शन एट द रिस्ट कराता है और एबडक्शन कराता है। ये फ्लेक्शन एट द रिस्ट कराता है लेकिन एडक्शन कराता है। यहाँ पर फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस होता है, पार्मेलिस लॉन्गस बीच में होता है, ऊपर प्रोनेटर टीरीज होता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को ये खुद सप्लाई करती है। बाकी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है अंदर जाके लेटरल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को सप्लाई करती है, और आपका जो है अल्लाह भला करे किसको सप्लाई करती है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को, और जो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस को। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा, इंजरी टू द मीडियन नर्व में देखें क्या क्या होगा। जो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, अगर कॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स हैं ह्यूमरस के, तो वो जो है डैमेज करते हैं आपके मीडियन नर्व को। मोटर लॉस किसका होगा? प्रोनेटर, प्रोनेटर्स चले जाएंगे, प्रोनेटर टीरीज और प्रोनेटर क्वाड्रेटर्स जो प्रोनेशन कराते हैं वो चले जाएंगे, तो आर्म जो है वो सुपिनेशन में चली जाएगी। लॉन्ग फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स जो है वो सप्लाई करती है आपकी मीडियन नर्व, उसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है, पार्मेलिस लॉन्गस है, और लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है। ठीक है, बाकी मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है वो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस सप्लाई करती है। तो जो है रिस्ट फ्लेक्शन इज वीक accompanied by adduction, तो जाहिर है रिस्ट की फ्लेक्शन वीक ही होनी है क्योंकि सारे फ्लेक्सर जो मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। Loss of flexion at the terminal phalanx of the thumb due to paralysis of flexor pollicis longus भी जारी है, वो थंब की फ्लेक्शन भी लॉस हो जाएगी क्योंकि फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो है वो भी सप्लाई कर रही है मीडियन नर्व। लॉस ऑफ फ्लेक्शन ऑफ इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, जाहिर है ये इंडेक्स और मिडिल फिंगर जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को भी सप्लाई करिए मीडियन नर्व, और प्रोफंडस को भी सप्लाई करिए, तो यहाँ पर इंडेक्स और मिडिल फिंगर के अंदर फ्लेक्शन होगी नहीं। अगर तो आपकी मीडियन नर्व चली जाएगी, अगर ये दोनों फिंगर्स खड़ी रहेंगी, फ्लेक्स नहीं होंगी, क्योंकि दोनों मेजर फ्लेक्सर्स जो हैं वो लॉस हो जाएंगे, तो इसको कहेंगे बेनेडिक्शन डिफॉर्मिटी। ये दोनों ये फ्लेक्स हो पाएंगी, ये फ्लेक्स नहीं हो पाएंगी, खड़ी रहेंगी, तो इसको कहते हैं बेनेडिक्शन डिफॉर्मिटी। अच्छा, ज़ाहिर ये थिनार मसल्स जो हैं, ये 3 अदर थिनार मसल्स जो हैं सप्लाई कर रही थी मीडियन नर्व, एंड 2 लुम्ब्रिकल्स, लेटरल लुम्ब्रिकल्स आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। तो अगर ये नहीं होंगे तो ज़ाहिर ये थिनार एमिनेंस भी फ्लैट हो जाएगा, यहाँ की क्यूटेनियस सप्लाई भी चली जाएगी, जो पामर क्यूटेनियस ब्रांच ओवर द फ्लेक्सर रेटिन्यूकुलम आके नीचे यहाँ पर सप्लाई करी थी वो भी चली जाएगी, तो 3.5 फिंगर्स की सेंसेशन भी लॉस हो जाएगी। तो डिफॉर्मिटी क्या होगी? फोर आर्म में क्या डिफॉर्मिटी होगी? रिस्ट फ्लेक्शन इज वीक accompanied बाय एडक्शन। ठीक है, रिस्ट की जो फ्लेक्शन है वो जारी है वीक हो जाएगी। अच्छा, फिंगर्स क्या होंगी? नो फ्लेक्शन ऑफ इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जारी यहाँ पर इंटरफेरेंजियल प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल दोनों जगह पर कोई फ्लेक्शन नहीं होगी। अच्छा, अगर अल्नर नर्व डैमेज हो रही थी तो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे तो फ्लेक्शन हो रही थी, लेकिन अगर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो अल्नर नर्व मीडियल साइड वाला सप्लाई कर रही थी वहां पर फ्लेक्शन नहीं हो पा रही थी, लेकिन यहाँ तो दोनों इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पर फ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है, हम जो है इसकी ना फ्लेक्शन होगी ना एबडक्शन होगी। एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस को सप्लाई करती है मीडियन नर्व, इसलिए एबडक्शन नहीं होगी। ऑपोजिशन यानी आप जब चाबी लगाते हैं तो आपको थंब के साथ इंडेक्स फिंगर को साथ मिला के भी लगाते हैं ना, तो ऑपोजिशन ओपोनेंस पॉलिसिस को भी मीडियन नर्व सप्लाई कर लिए, इसलिए ऑपोजिशन ऑफ द थंब लॉस लॉस हो जाएगी, फ्लेक्शन ऑफ द थंब लॉस हो जाएगी।
अच्छा, और एप्स हैंड क्यों एडक्टर पॉलिसिस जो है वो अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है, इसलिए थंब एडक्शन में चला जाएगा। ये देखिए बेटा, एडक्शन, एबडक्ट नहीं हो पाएगा, ना ही किसी फिंगर के साथ ऑपोजिशन हो पाएगी। ये दोनों फिंगर्स खड़ी रह जाएंगी, बेनेडिक्स बेनेडिक्स, और ये थंब जो है वो एडक्शन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एडक्टर पॉलिसिस होता है वो अल्नर नर्व सप्लाई करती है। तो इसको कहते हैं एप्स हैंड। ये देखें एप्स हैंड है, और ये देखिए दोनों फिंगर्स खड़ी रह गई हैं, ये है बेनेडिक्ट। ये दोनों फ्लैक्स हो पा रही हैं, ये नॉर्मल है क्योंकि अल्नाह नर्व इनको सप्लाई कर रही है, और ये दोनों खड़ी हैं इसलिए बेनेडिक्शन साइन है। और ये देखिए थंब जो है वो जो है एडक्शन में चला गया है, अबडक्ट नहीं हो पा रहा। और यहाँ जो हाइपोथिनर एमिनेंस है ये भी फ्लैट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एप्स हैंड। ठीक है, सेंसरी लॉस क्या होगा, लेटरल साइड ऑफ द पाम, ये लेटरल साइड ऑफ द पाम आपका सारा सेंसरी लॉस हो जाएगा, एंड 3.5 फिंगर्स, और ये आपकी 3.5 फिंगर्स। और डिस्टल पार्ट ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थ्री, और मैंने आपको बताया था डॉर्सम पे भी ये कुछ हिस्सों को उंगलियों के सप्लाई करती है, और डॉर्सम के, और बाकी जो है वो रेडियल नर्व सप्लाई करती है। तो ये भी जाहिर ही है, जहाँ जहाँ मीडियन नर्व सप्लाई करी है वो सारी चीजें ही लॉस होंगी। अब ये देखिए एप हैंड आपको नजर आ रहा है, अब कोई फ्लेक्शन नहीं है ऑफ द टर्मिनल पैलिंग्स ऑफ द थंब। ये क्या ओपन, ये जो है ना जो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस इसको सप्लाई करता है, इसलिए फ्लेक्शन नहीं हो पाएगी। और आपकी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट को भी मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, इसलिए फ्लेक्शन लॉस हो जाएगी थंब की। और एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, इसलिए एबडक्ट भी नहीं हो पाएगा, और सिर्फ एडक्ट हो पाएगा जो अल्नर नर्व बिल्कुल सही होगी तो। ठीक है, और थिनर एमिनेंस फ्लैट हो जाएगा, ये देखिए ये फ्लैट हो जाएगा, और थंब लैटरली रोटेट एंड एडक्टेड पोजीशन में चला जाएगा, एडक्शन में चला जाएगा। अब ये दोनों फिंगर्स जो हैं ये फ्लेक्स नहीं हो पाएंगी। ठीक है, यहाँ का सुपरफिशियलिस जो है वो, ये कुछ दोनों फिंगर्स खड़ी होंगी, तो ये बेनेडिक्ट साइन होगा। ठीक है, यहाँ वाला लगता है कि ये थोड़ा कुछ सही है। अगर फ्लैक्स हो रही हैं हल्की हल्की, तो इसका मतलब जो मेन फ्लैक्सर्स हैं वो सही हैं, मतलब डैमेज नीचे की तरफ हुई है, रिस्ट के लेवल पर हुई है ये डैमेज, इसलिए जो है ये फ्लैक्स हो पा रही हैं, लेकिन यहाँ पर डैमेज हो गई है। ठीक है, ऊपर वाले जो फ्लैक्सर्स हैं वो ठीक है। ठीक है बेटा, अब रिस्ट पर अगर डैमेज हुई है, मोस्ट कॉमनली इंजरी ऑफ द मीडियन नर्व, अगर रिस्ट पर डैमेज हुई है तो क्या होगा, ड्यू टू पेनिट्रेटिंग इंजरीज आ रही है, स्टैब वुंड्स होंगे जिसकी वजह से रिस्ट पर डैमेज होगी। मोटर लॉस, मसल्स ऑफ द थिनर एमिनेंस और लम्ब्रिकल्स ये लॉस हो जाएंगे। एप्स हैंड अभी अब मैंने आपको समझा दिया कि क्या हो जाएगा ना, ना फ्लेक्शन होगी थंब के अंदर, ना आपकी अबडक्शन होगी, और ना ही ऑपोजिशन होगी, तो ये एप्स हैंड हो जाएगा। सेंसरी लॉस और जो है सेम इन एल्बो लीजन। ठीक है, सेंसरी लॉस हो जाएगा 3.5 फिंगर्स के अंदर। ठीक है, और पीछे डोर्सल ऑफ द हैंड एक सिंड्रोम होता है जिसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। जब ये नर्व जो है वो कार्पल टनल से बेटा पास होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है। तो ऑस्टियो फाइब्रस स्पेस फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर कॉनकेव सरफेस ऑफ द कार्पस एंड फ्लेक्सर रेटिनिकुलम। ऊपर ऊपर फ्लेक्सर रेटिनिकुलम होता है, नीचे जो है कॉनकेविटी ऑफ द कार्पल बोन्स होती है। ठीक है, यहाँ से पास हो रही होती है। पैसेज ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन, यानी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, आपके जो फ्लेक्सर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है। तो यहाँ पर मेन फ्लेक्सर्स पास हो रहे होते हैं, और मीडियन नर्व उनके साथ पास हो रही होती है। सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व ड्यू टू रिड्यूस साइज ऑफ द कैनाल। कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसकी वजह से कंप्रेशन हो जाए मीडियन नर्व की, और कॉजेज क्या होंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेटिनिकुलम, ऊपर जो रेटिनिकुलम है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, आर्थराइटिस ऑफ द कार्पल बोन्स हो उसमें डैमेज हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल शीट्स। अच्छा, टेंडन्स के ऊपर साइनोवियल शीट्स होते हैं, वो अगर इन्फ्लेम्ड हो जाए और नर्व उसके साथ जो है वो कंप्रेस हो जाए। ठीक है, सेंसरी एंड मोटर लॉसेस क्या होंगे, वेरियस सेंसरी लॉसेस में आपके जो 3.5 फिंगर्स हैं, जहाँ पर मीडियन नर्व सप्लाई करी है वहां पर आपको पेन्स होना शुरू हो जाएंगी, और डिफरेंट सेंसेशंस फील होंगी। लेटरल वन जो है लेटरल 3.5 फिंगर्स के अंदर, और थिनर मसल्स भी जो हैं वो आपकी वीक हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ भी आप देख सकते हैं ये सारा जो है, यहाँ पर आपकी हाइपोट्रॉफी हो जाएगी, ये देखिए हाइपोट्रॉफी। ठीक है, और 3.5 फिंगर्स जो हैं ये आपके जहाँ पर आपके पेन्स और नमनेस फील होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसमें टीनोसाइनोवाइटिस ऑफ फ्लेक्सर टेंडन्स है, माइक्सोडीमा है,
रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, सेंसरी जो है फीलिंग ऑफ बर्निंग पेन इन द लेटरल 3.5 डिजिट्स में हो सकता है, मोटर में वीकनेस, क्या थिनार मसल्स चले जाएंगे, एप डिफॉर्मिटी हो जाएगी, और ये कुछ टेस्ट होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये देखिए फिर आपको एप डिफॉर्मिटी यहाँ पर दिखा रहा है, जो थंब है वो एडक्शन में चला गया, ये देखिए थिनार फ्लैटेंड हो गया। ठीक है, मीडियन नर्व पैल्सी हो गया, वेस्टिंग ऑफ द थिनार एमिनेंस आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, और इनएबिलिटी टू अपोज द फ्लेक्स ऑफ द थंब, ये अपोजिशन में चला जाएगा, एबडक्शन में ही होगी ये यहाँ पर कुछ टेस्ट करके देखते हैं, ये फैलेंस टेस्ट है, या आप अगर मीडियम नर्व कंप्रेशन यानी जो है आपके कार्पल टनल सिंड्रोम को चेक करने का तरीका ये है कि एक फैलेंस टेस्ट होता है जिसमें दोनों हाथ हैं, आप ऐसे मिलाएंगे तो थोड़ी देर में आपको पेन और पैरेस्थीसियास फील होने लगेंगे। एक टेनल साइन होता है, फ्लेक्सर रेटिकुलम पर आप टिक 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 करके देखते हैं तो फौरन आपको जो नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाती है। तो पेन होगा, एनेस्थीसिया होगा और पैरेस्थीसियास होगा, इन दोनों टेस्ट से ये कंफर्म किया जाता है कि मीडियन नर्व डैमेज तो नहीं है। थैंक यू सो मच। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये सारी जो है ये जो भी था वो फिनिश हो गया है, नर्व्स का जो चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू सो मच, इम्पोर्टेंट नर्व्स हो गई हैं।